أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہم 54 سے آغاز کریں گے. آپ سب اپنے قرآن پاک کھول لیجئے، میں یہاں اسکرین شیئر کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اسکرین شو ہو رہی ہے؟ کائنڈلی مجھے انفارم کیجئے اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی جی دانیہ ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحیم. آیت نمبر 54. اس میں ہم قواعد کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر سب سے پہلا قاعدہ ہمیں حرکت کا نظر آ رہا ہے. حرکت کو ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ حرکت کو ہم جلدی ادا کرتے ہیں، اس کو ہم طویل ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے زال کا مخرج ہم نے نرمی سے ادا کیا، قوف کو ہم نے پر ادا کیا، حروف مدہ الف واو یا، الف سے پہلے اگر زبر ہو، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. کھڑی حرکات کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچا، قوف کا مخرج ہم نے پر ادا کیا، کھڑی زیر کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچا. نون مشدد پہ آپ نے اچھے سے غنہ کرنا ہے. پھر یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر ہے اخفا شفوی، تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ کمزور غنہ کرنا ہے. اور اگر حروف قلقلہ، ٹھیک ہے، قوف تو با جیم دال، آیت کے اگر بیچ میں آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کمزور قلقلہ کرنا ہے. حرف مد کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر ہے فَقْتُلُوا، تو یہاں پر چھوٹی مد بنے گی، اس کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچنا ہے. نون ساکین اور تنوین کے بعد اگر لام اور را آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یرملون کا قاعدہ، وہاں پر اظہار ہوگا.
پھر یہاں پر دیکھیں لاسٹ میں انہو ہوا التواب الرحیم، جب ہم تا کی زبر کو واو مشدد سے ملائیں گے تو واو پہ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے ہونٹوں کو اچھے سے گول کرنا ہے، لیکن جیسے ہی ہم زبر ادا کریں گے تو ہمیں اپنا منہ کھولنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، آیت نمبر 54 کون آ رہا ہے؟ ہینڈریس کی ایک منٹ بند کر دو، جنریٹر بند کر دو، چلیں کوثر علی، جی کوثر علی آپ آئیے. جی کوثر علی میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے اسٹارٹ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ اچھا یہاں پر آپ ظَلَمْتُمْ. وقف کریں گی یا قوم. اچھا. لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. اچھا مسز کوثر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آیت نمبر 54 میں آپ نے کون سے قواعد کو فالو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کس طرح بتانا ہے؟ جیسے میں نے حرکت کو جلدی ادا کیا، حرکت کو جلدی ادا کرتے ہیں، اس کو کھینچتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. کون سا بولے جی آپ؟ پوچھیے کون سا بتائیں اس طرح سے. آپ آیت کو دیکھیں، سب حرکت سے پہلے کیا واو ہے؟ واو کے حرکت ہے نا. اوپر حرکت. جی واو کے اوپر حرکت ہے، اسے جلدی ادا کرنا ہے. اور ٹھیک ہے، قاف حروف کے مدہ. ساتھ الف ہے، اسے ایک حروف مدہ ہے، اور قاف کے ساتھ الف ہے، اسے ایک الف کے برابر ہی کھینچنا ہے. شاباش. اور کھڑی حرکات. آیت کو دیکھتے جائیے. جیسے جی ہے موسیٰ، آپ نے بولا کھڑی حرکات ہے، آپ کو قاعدہ نظر آیا کھڑی حرکات کا، آپ نے کہا اس کو میں ایک الف کے برابر میں نے اس کو کھینچا. لِقَوْمِهِ آپ نے دیکھا حروف لین، آپ نے کہا میں نے اس کو نرمی سے ادا کیا. کھڑی زیر ہے، اس کو میں نے ایک الف کے برابر کھینچا. اس طرح سے نون مشدد آ گیا، آپ نے کہا میں نے اس کو اچھے سے غنہ کیا. اس طرح سے بتائیے، کوشش کریں. اچھا. ایکچولی ہم دوسرے فون میں دیکھ رہے تھے، میرا وہ ہاتھ سے فون یہ کوئی ہو گیا بات نہیں، چھوٹ کوئی گیا. بات ایک منٹ. 54 نا. ہاں ٹھیک ہے. نہیں. اس آیت کے نمبر بعد 54. موسیٰ میں کھڑی حرکات ہے، واو مدہ ہے. واو موسیٰ میں واو مدہ ہے تو اسے کھینچ کر ادا کرنا ہے. اور سین کے اوپر کھڑی حرکات ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. یہاں پہ بھی لام کو جلد پڑھنا ہے. قاف واو مدہ ہے، قاف واو. اور اس کے بعد قاف واو کون سا ہے؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، کیا ہے یہ؟ جی لین ہے، حرف لین. کیسے ادا کریں گے؟ جلدی سے نرمی سے ادا کرنا ہے. نرمی سے ادا کریں گے. شاباش. جی. اور آگے نون مشدد کیا کرنا ہے؟ نون مشدد کو شدت سے پڑھنا ہے، مطلب غنہ کر کے. کیسے؟ غنہ کر کے پڑھنا ہے، جی اچھے سے غنہ کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جی. اور آگے نون ساکن کے بعد فا آ گیا، یہ کیا ہے؟
अनफुसकुम क्या किया यहाँ पे? इख्फा किया। इख्फा किया यानी कमजोर होना किया, शाबाश। और मुशद्दद को कैसे अदा करते हैं? मुशद्दद को इसके साथ हम्म, मिलाकर एक बार अपनी हरकत से पढ़ना है। हाँ वो तो ठीक है। और इसके अलावा सख्ती से अदा करते हैं? जी, सख्ती से अदा करते हैं। ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें, इजला, अब यहाँ पे जीम आ गया है आयत के बीच में, तो क्या है जीम? जी में कलकला है, कमजोर कलकला करना है मैम। शाबाश शाबाश। अच्छा यहाँ पे हरफे मद के बाद यहाँ पर हमजा है अलिफ की शक्ल में, कितने अलिफ के बराबर खींचूं मैं इसे? 3 अलीफ के बराबर। शाबाश। क्या कहते हैं इसको हम? बड़ी मत, छोटी मत? छोटी मत कहते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा यहाँ पर है ज़ालिकुम खैरुल लकुम। अब यहाँ पर नून साकिन और तनवीन के बाद अगर लाम आ जाए तो मैं यहाँ पे क्या गुन्ना करूंगी या इजहार करूंगी? नहीं, ये इक़लाब का ये इसका यरमलून का कायदा है, इसमें इजहार करना है। शाबाश, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, माशाल्लाह, शाबाश। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। या की नेक्स्ट कौन आ रहा है? सिर्फ कौसर अली ने हैंड रेस किया हुआ है, बाकी सब कहाँ हैं? आमना एहसन, अफशा इमरान, आप आइए। अफशा इमरान, आयशा सुल्ताना, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। आमना सुमरो, आप आइए। जी, राफिया अख्तर, जल्दी जल्दी सब हैंड रेस कीजिए। चलें, आयत नंबर 54। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला फ़तूबू इला बारिकुम फ़क़्तुलू बारिकुम। अच्छा यहाँ पर एक और चीज आप देखें, अगर आपका सांस टूटता है तो वहां पे आप वफ कीजिए, ठीक है? ठीक है। जैसे इला लिकौमी, दोबारा से पढ़िए, वॉइस कॉल ऐसे। व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी या या कौम कौम। या कौम अब या वसल मिला के पढ़े, शाबाश। लिक़ौमिही या कौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला फ़तूबू इला बित्तिखाज़िकुमुल इज्ल। अगर आप यहाँ पे वफ कर रही हैं तो लाम को साकिन करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? इज्ल। इज्ल बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल ठीक है। अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला फ़तूबू इला बारिकुम फ़क़्तुल बारिकुम, बारिकुम बारिकुम। बारिकुम। हम्म। इधर भी वक्फ करेंगे। अगर आप यहाँ पे वफ करना चाहती है तो आप वफ कर लें, अगर आपका सांस टूटता है फिर आप वसल में पढ़ लें, ठीक है? अगर इला आप एक साथ पढ़ सकती है तो एक साथ पढ़ लें, आयत पे वफ कीजिए। सही इला बारिकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिकुम फताबा अलैकुम फताबा अलैकुम, एक साथ पढ़िए। फताबा अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम तव्वाबुर रहीम। तव्वाबुर रहीम। शाबाश। चलें, आयत नंबर 54 जो आपने पढ़ी है, इसमें आप कवायद बताएं, आपने कौन कौन से कवायद को फॉलो किया है?
कोशिश करें। सबसे वा पहले कौन सा कायदा है? जबर का कायदा है, इसको खींचना नहीं है। ठीक है, और हरकत का कायदा है। हाँ जी, हरकत का जबर का है, इसको एक अलिफ के बराबर खींचना है, अलिफ नहीं, के इसको साथ। हमने किसको एक अलिफ के बराबर खींचना है? काफ जबर अलिफ का। ठीक है, हुरूफ मद अलिफ मद आ गया, इसको आपने एक मतलब अलिफ के बराबर खींचा। और मीम आगे? पेशवा मुंह है, मुंह सा में मुंह को खींचना है, वाव मद्दा है। और सीन खड़ी जबर है, तो इसको एक अलिफ के बराबर खींचना है, इसको भी। शाबाश। आगे? लिकौमी में, लिकौमी ही में कौ को भी खींचना और ही को भी खींचना है, वो अच्छा, लीन कऊ का को कायदा खींचना है। है, कैसे पढ़ूं मैं? ली कऊ ऐसे पढ़ूं? नहीं नहीं, इसको ज्यादा नहीं खींचना, फिर? क्योंकि लीन है ना, इसको हाँ, ली को नरमी हम से सिर्फ पढ़ना है। नरमी से अदा करते हैं। शाबाश। आगे? या कौमी में या को खड़ी जबर है, तो उसको खींचना है। और ठीक है, काफ जबर वाव काऊ करना है, इसको भी वाव का कायदा है इसमें। लीन है, सॉरी। लीन का, हाँ, लीन का कायदा है। नरमी से अदा इन्ना करना। कुम, नरमी से अदा करना। इन्ना कुम में गुन्ना करना है, ये नून मुशद्दिद है साथ। शाबाश। आगे? आम फोसा कुम में वो इख्फा करना है। हम्म। और बित्ती खाजी को मिल में इसमें है बा आ रहा है मीम से पहले के बाद, तो इसको एक अलिफ के बराबर खींचना है, क्योंकि ये इख्फा शफी है। एक मिनट, मीम साकिन के बाद बा आ गया, तो यहाँ तो पर हम इख्तिलाफ कमजोर है। गुन्ना करेंगे। हाँ जी। ठीक है, इख्फा शफी, जैसे अनफुसकुम बित्तिखाजिकुमुल इज्ल। आगे? फतूबू, इस ये मद आ रही है, इसको चार अलिफ के बराबर छोटी मद है, इसको खींचना है। चलें, ठीक है, 3 अलिफ के बराबर 4 अलिफ के बराबर खींचते हैं। ठीक है, आगे? और इला में भी खींचना है, एक अलिफ के बराबर। बारिकुम में बा को खींचना है, क्योंकि ठीक एक है, अलिफ है इसके। फकतुलू, इसको भी चार अलिफ के मुताबिक खींचना है बराबर। ठीक है, 3 अलिफ के बराबर हम नॉर्मली खींचते हैं इसको। ठीक है। ठीक है। अनफुसकुम में इख्फा करना है, और हम्म। जालिकुम में जा को नरमी से भी पढ़ना है, और अलिफ के एक खड़ी जबर इसको खींचना जाल है। है, ठीक है, जाल है, जानी है, जाल है। जालिकुम। ठीक है। और इसमें खैरुल्लकुम में इजहार करना है। इजहार करना है। ठीक है, कौन सा कायदा है ये? ये वो है यरगुम वाला। शाबाश। आगे? इंदा, इंदा में वो इख्फा करना है। और शाबाश। बारीक में बा को बस खींचना है। ठीक है। इन्नहु में उस इन्नहु में गुन्ना करना है। ठीक है, नून मुशद्दद अच्छे से गुन्ना किया। आगे? हुवा तवाबुर रहीम। तव्वाबुर रहीम, तवाब नहीं, तव्वाब। ठीक है, तवाब, हाँ जी, ये तवाब। वाओ पे सही भी जो है वो तशदीद है। है। इसको दो दफा पढ़ते हैं, तवाब। जी, हुवा तव्वाबुर रहीम। मुशद्दद जो हर्फ होता है, तो इसको हम 2 दफा अदा करते हैं ना, लेकिन वाव पे भी मुशद्दद है, तो ताकि जबर को हम किससे मिलाएंगे? वाव मुशद्दद से। और फिर वाव की हरकत, वाव अलिफ जबर वा, तव्वा। हुवा तवाबुर रहीम। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। शाबाश। अल्लाह। ठीक है, फौजिया जावेद आप आइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इज्ला फतूबू इला बारीइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारीइकुम फताबा अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम।
शाबाश। चले इसमें कवायद बताइए। आयत नंबर 54 में कौन कौन से कवायद हैं? वही तो ये हरकत है, इसको वो जाल को नब्बे से पढ़ना, वैसे कॉल है, काफ को मोटा भी पढ़ते हैं और इसको एक अलिफ के बराबर थोड़ा सा लंबा भी करते हैं। मूसा के बाद सीन के ऊपर खड़ी जबर है, इसको एक अलिफ के बराबर पढ़ते हैं और वाव से पहले पेश है तो ये वाव मद्दा है, इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। ली ठीक है, कौमी, ये काफ के ऊपर जबर है, आगे वाव है तो ये हरफ लीन हो गया, तो ये हरफ लीन को नरमी से अदा करते हैं। और हम हे के नीचे खड़ी जबर है, ये खड़ी इसको जेर एक है। खड़ी जेर, इसको एक अलिफ के बराबर करते शाबाश। आगे हैं। फिर आगे हरफ लीन है, आगे भी हरफ लीन है, इसको यहाँ पर खड़ी जबर, इसको एक अलिफ के बराबर या इन्ना में को इन्ना गुना कर पड़ते हैं। आजे कुमुल इजला, यहाँ पे ये वो क्या कहते हैं, कलकला है, जहाँ पे नरम कलकला करते हैं। जो दरमियान कमजोर में लफ्ज कलकला। आए तो यहाँ दरमियान में लफ्ज आए तो कमजोर कलकला करते हैं। यहाँ पे फिर वाव के पहले वो पेश है तो फिर ये वाव मुद्दा हो गया, इसको एक अलिफ के बाद करते हैं। फिर आगे भी वही है, पेश है, ऊपर मद है, इसको तीन अलिफ के बराबर करेंगे। इला में खड़ी जबर है, इसको एक अलिफ के बराबर करेंगे। और आगे फक्तुलू, यहाँ पे भी नरम को कलकला करेंगे। ये और मद्दा है, इसको तीन अलिफ के बराबर करेंगे। यहाँ पे आगे इख्फा होगा। जालिकुम खैर, फिर जाल के ऊपर खड़ी जबर है, एक अलिफ के बराबर। खैरुल लकुम, यहाँ पे यरमुलून का कैदा आएगा, यहाँ पे इजहार होगा, इजहार का कैदा है। इंदा, यहाँ पे भी इख्फा होगा। फिर अलैकुम, इन्नहु, यहाँ पे गुन्ना होगा, हुवा तव्वाबुर रहीम। यहाँ पे तव्वा, इसको मिला के तशदीद है, इसको मिलाकर पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे हुवा, रा को मोटा पढ़ेंगे। फिर या से पहले जेर है, इसको ये या मद्दा हो गया, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, और मीम को साकिन कर देंगे, फिर कितने अलिफ के बराबर खींचेंगे? एक अलिफ के बराबर। जैसे मैंने पढ़ा तव्वाबुर तव्वुर रहीम, रहीम, 3 अलिफ के बराबर। तीन, सॉरी ठीक सॉरी, है? तीन अलिफ के बराबर, जी जी ठीक है। तो वाव, क्योंकि मैंने भी लंबा करके पढ़ा था, तीन अलिफ के बराबर, यहाँ भूल गई मैं, तीन अलिफ के ठीक है, बराबर कोई पढ़ा। बात नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, शाबाश। ठीक है, शगुफ्ता सज्जाद, आप आइए। अज़िमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या मूसा, खड़ी मूस हरकत से अलिफ के बराबर खींचे। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल हिज्र इज्ल, आइन का मखरज अच्छे से अदा कीजिए। हिज्र इज्ल हिज्र नहीं, हाँ तो नहीं है, क्या है? आइन है। आइन है, आइन का मखरज सही से अदा कीजिए। बित्तिखाज़िकुमुल इज्ला ठीक है, बित्तिखाज़िकुमुल इज्ला फतूबू इला बारिइकुम फक़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारिइकुम फताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। रहीम, हा का मखरज अच्छे से अदा कीजिए। रहीम। ठीक है, माशाल्लाह। चलें आयत नंबर 54 में कवायद बताइए। ये हरकत है, सादी हरकत को जो है खींच के नहीं पढ़ना, दाल को नरमी से अदा करना है, ऑफ जो है इसको मोटा अदा करना, और अलिफ आ रहा है तो ये अलिफ मद्दा का कायदा है, इसको खींचना है। और कितने अलिफ के वाव, बराबर खींचना है? जी, कितने अलिफ के बराबर खींचूं मैं हुरूफ मद्दा को? हरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर। शाबाश। आगे मूसा, मूसा जो है वाव से पहले पेश आ रहा है तो ये वाव मद्दा का कायदा है। वाव साकिन से पहले पेश।
वाव साकिन से पहले पेश आ रहा है तो वाव मद्दा का कायदा है, सीन के ऊपर खड़ी हरकत है, इसको भी खींचना है एक अलिफ के बराबर। और काफ वाव साकिन से पहले काफ आ रहा है तो ये नरमी से अदा करेंगे, हरूफ लीन है। वाव और साकिन से पहले जबर आ रहा है तो ये हुरूफ लीन है। जी वाव साकिन से पहले जबर आ रहा है, ये हरूफ लीन है। ठीक है। हाँ के नीचे खड़ी जेर है तो इसको भी एक हरकत के बराबर खींचना है, एक अलिफ के बराबर। या को भी, ये भी खड़ी हरकत है, इसको भी एक अलिफ के बराबर। कौ में ही वाव साकिन से पहले जबर है, ये भी हरूफ लीन में है। इन्नकुम जो है नून के ऊपर तशदीद आ रही है, यहाँ पे गुन्ना करना है। और फुसकुम नून यहाँ पे जो है इख्फा होगा। ठीक है। और ये बित्तेहाद जो है, ये इसके ऊपर तशदीद आ रही है और इसको जो है सख्ती से अदा करना है। साकिन के बाद बा आ गया, अनफुसकुम, जी ये ये क्या है? इख्फा शफ़ी, इख्फा होगा, इख्फा शफ़ी। ठीक है, माशाल्लाह। आगे। बित्तेहा ये मुशद्दद हरूफ है और यहाँ पे इसे सख्ती से अदा करना है। ठीक है। जी में यहाँ पे जो है कलकला होगा, कमजोर कलकला। फतूबू और बास, बा नहीं, वाव साकिन से पहले पेश आ रही है तो ये भी हरूफ मद्दा है, वाव मद्दा है। अच्छा, इसके और ऊपर तो छोटी मत भी है। जी छोटी मद है तो इसे 3 अलिफ के बराबर खींचना है, खींच के ठीक है। पढ़ना है। और लाम के ऊपर भी खड़ी जबर है तो इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है। ठीक है। बारिकुम, ये भी एक अलिफ मद्दा का कायदा है। कौन सा? बारिकुम। ठीक है। और आगे। फक्तुलू, काफ के ऊपर कलकला करना है और आगे छोटी मद आ रही है, 3 अलिफ के बराबर इसको खींचना है। शाबाश। ये भी इख्फा, यहाँ पे भी इख्फा करना है। जाल के ऊपर फिर खड़ी जबर है, इसको एक अलिफ के बराबर पढ़ना है। खैरुल्लकुम, ये जो है रा के बाद लाम आ रहा है, यहाँ पे जो है रा के बाद इजहार लाम आ रहा है या ला, इसे मिला तनवीन के के पढ़ना बाद? है। रॉ के तनवीन बाद के लाम नहीं, तनवीन के बाद। ठीक है। तनवीन के बाद लाम आ रहा है, यहाँ पे इजहार होगा, यानी रूफ शर्मलून में से आ रहे हैं ना, इन ठीक है। पे इजहार किया जाएगा। फिर नून जो है इस पे भी इख्फा होगा। इन नून के ऊपर जो है वो है गुन्ना करना है, अच्छे से गुन्ना करना है, नून मुशद्दद पे। नून शद्दत पे अच्छे से गुन्ना करना है। और आगे भी जो है ये मुशद्दद हरूफ आ रहे हैं, इनके भी ऊपर भी जो है इन्हें सख्ती से पढ़ना है। और ठीक है। इनको 2 दफा पढ़ना है ना, तशदीद आ रही है तो उन हरूफ को 2 दफा पढ़ा जाता है। ठीक है। 2 दफा पढ़ा जाता है, 1 दफा किसके साथ? एक दफा उनकी अपनी आवाज में और एक दफा पिछले माकबल जो हरूफ होता है उसके साथ मिला के। ठीक है, शाबाश। 1 दफा साकिन के साथ और 1 दफा इसकी खुद की हरकत। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, शाबाश। ठीक है, इफ्साना आरा, आप आइए, जल्दी जल्दी हैंड रेस कीजिए, सबने पार्टिसिपेट करना है। इफ्साना आरा, आप आइए। जी आप। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या कौमि इन्नकुम ज़लमतुम अन्फुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू। वसल इला में पढ़े, अगर वक्त बारि करे तो।
إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو علیکم. عليكم आइन إنه का मतलब अच्छे से अदा कीजिए. علیکم. فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے. چلے اس کے قواعد آپ بتائیے. آیت نمبر 54 میں کون کون سے ابھی قواعد آپ کو نظر آئے؟ ابھی میں نے قاعدہ پڑھا نہیں ہے، میں کوشش کرتی ہوں. چلے ٹھیک ہے. ابھی آپ نے اچھا پڑھا ہے. آپ بتائیں. چلے بتائیں. حرکت کو آپ نے ہاں، کیسے ادا کیا؟ جلدی ادا کیا یا آپ نے حرکت کھینچا؟ کو جلدی، جی آپ ہی، جلدی ادا کیا. ٹھیک ہے. اچھا حرکت حروف کو جلدی مدہ ادا کو آپ کرنا. نے ایک جلدی ادا کیا ایک الف کے برابر؟ ایک الف کے برابر، جی. شاباش. پھر ہے اچھا قوف کو موسا یہاں ٹھیک پہ ہے واو مدہ کا قاعدہ ہے، اس کو ٹھیک ایک ہے الف کے برابر شاباش. کھینچنا ہے، اور ایک کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. پھر یہاں پر ہے لام شاباش. زیر لی، یہ حرکات ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. پھر کاف زبر کو یہاں پہ واو لین کا قاعدہ ہے، اس کو نرمی شاباش. سے کیسے ادا پڑھیں گے. کریں گے؟ نرمی سے پڑھیں گے. شاباش. نرمی سے، جی. پھر ہے میم زیر می، یہاں پہ حرکات جلدی پڑھیں گے. پھر ٹھیک ہے ہے پھر ہے کھڑا الف، اس کو ایک الف کے برابر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پھر ہے یا قومی، یا کو ایک الف کے برابر پڑھیں گے. پھر ہے کو یہاں پہ واو لین کا قاعدہ ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے. انکم، یہاں نون پر مشدد پتہ نون مشدد کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ گناہ کریں گے. کریں گے. ام، ٹھیک ہے آگے. انکم ظلمتم انفسکم، یہاں پہ اکفا ہوگا، مطلب نون کی آواز کو چھپائیں گے. ٹھیک ہے اور باتخاذکم العجل. اچھا یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو کون سا قاعدہ ہے یہ؟ اخفا اکفا، شفوی میم ساکن کا قاعدہ. ٹھیک ہے ابھی. یہاں پہ بھی اخفا ہوگا. کمزور ٹھیک ہے کمزور ایک بننا. کمزور گناہ کریں گے، جی. شاباش پھر آگے. ہے فتوبو، با پہ چھوٹی حرکات ہے، اس کو 3 الف چھوٹی کے مد ہے. برابر چھوٹی مد ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے. شاباش. پھر ہے اللہ بارئکم، الا با الا نہیں ہے. اللہ بارئکم، با کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، الف مدہ ہے نا. ٹھیک ہے. ابھی مجھے پورا قاعدہ نہیں، میں نے نہیں پڑھا ہی نہیں ماشاءاللہ بہت قاعدہ. اچھا. آپ اچھا ایکسپلین کر رہی ہیں. پھر ہے آگے یہاں آگے. فقتلو، یہاں پہ کلکلا ہوگا. ٹھیک ہے کون سا کلکلا؟ کون سا والا؟ طاقتور یا کمزور؟ کم کمزور ہاں شاباش. کمزور کلکلا ہوگا. پھر ہے انفسکم، یہاں پر بھی اکفا ہوگا. ٹھیک ہے پھر ہے ذالکم خیر لکم، یہاں پہ اظہار ہوگا، مطلب یہ یارملون کا قاعدہ ہے نا، یہاں پہ اظہار. صحیح. آگے. پھر عند بارئکم، نون ساکن کے بعد دال آ گیا. جی. حروف اخفا میں سے ابھی میں نے پڑھا نہیں ہے. یہاں پہ بھی کیا ہوگا؟ کمزور غنہ ہوگا نا. جی. ٹھیک ہے آگے. آپ نے کافی سارے قاعدے آپ نے اچھے سے ایکسپلین کیے ہیں. ٹھیک ہے ہاں مشدد کو ہم تفصیل پورا، سے ادا کریں جی گے. آپ یہ میں نے پڑھا ہے حرکات، اور وہ نہیں پڑھا، اکفا ادغام، یہ میں نے نہیں پڑھا چلیں ہے. چلیں چلیں ٹھیک ہے. پھر ہے فتاب علیکم، فا پہ زبر ہے، اس کو حرکات کہتے ہیں، حرکات کو جلدی پڑھتے ہیں. تا الف زبر تا، یہاں پہ الف مدہ ہے، اس کو تھوڑا ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. پھر با پہ زبر ہے، اس کو حرکات کہتے ہیں، اس کو جلدی ادا کریں گے. علیکم، یہاں پہ یا لین کا قاعدہ ہے، اس کو جلدی
हुआ तव्वाबुर रहीम, मुशद्दद को कैसे पढ़ते हैं, सख्ती से या नरमी से? मुशद्दद को सख्ती से पढ़ते हैं। शाबाश शाबाश, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, जी वेरी गुड, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें। जी अभी शाबाश। कायनात खान, जी अभी चलें आयत नंबर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم ज़लमतुम अनफुसकुम, अगर यहाँ पे आपका सांस ظلمتم टूटता है वक्त कीजिए। ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أن- फ़क़्तुलू فاقتلوا बारिइकुम फ़क़्तुलू, بارئكم فاقتلوا दोबारा कहिए أنفسكم बारिइकुम। बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम अच्छा, खैर अनफुसकुम पे आप वक़्फ़ कर सकती हैं, उसके बाद फिर आप आगे से पढ़ें, ठीक है? अनफुसकुम, अनफुसकुम आप आगे से पढ़ें। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद खैरुल लकुम, हरकत को जल्दी अदा कीजिए। खैरुल लकुम इंद बारिइकुम फताबा अलैकुम इन्नहु हुवत्तव्वाबुर रहीम। हुवा तव्वाबुर रहीम, वाव पे आपने होंठ को गोल करना है, लेकिन जैसे ही ज़बर अदा करेंगी तो आपने अपना मुंह थोड़ा सा खोलना है, ठीक है? तव्वा, दोबारा पढ़िए। तव्वाबुर रहीम। शाबाश शाबाश, माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है आपने, ठीक है? आप कायदे बताइए। आयत नंबर 54। वाव पे ज़बर है तो इसको जल्दी पढ़ेंगे। इज, ये इसको नरमी से पढ़ेंगे। काफ, काफ अलिफ कायदे का को, नाम भी बताया ना, वाव पर ज़बर है। वाव वाव पे ज़बर है तो क्या हरकत है ये तो इसको जल्दी, हरकत है? हरकत को जल्दी पढ़ते हैं। हरकत को जल्दी पढ़ते हैं। इज को, इज ये हरफ लीन में से इसको नरमी से पढ़ेंगे। नहीं, काफ अलिफ, इज जाल नरमी से अदा होता है, ठीक है? इज हुरूफ लीन में से नहीं है। जाल नरमी से अदा होता है। और काफ अलिफ को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। आराम आराम से एक्सप्लेन कीजिए, रिलैक्स। काफ काफ अलिफ को एक बराबर की तरफ खींचेंगे। और ठीक है, मूसा में मीम और वाव, ये मीम मद्दा है, वाव मद्दा है तो इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। सीन पे अलिफ खड़ी हरकत है तो इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। शाबाश। लिकौमी ही को, काफ लाम को नरमी से जल्दी में से अदा करेंगे, इस पे हरकत है। काफ व कौ को मद्दा है तो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मी क्यों? ही, वाव सेकंड से पहले जबर है, कौन सा कायदा है? ये वाव मद्दा, हुरूफ लीन, हरूफ लीन, जी हरूफ लीन है तो इसको नरमी से अदा होगा। ठीक है? और हे खड़ी जेर है तो इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। या कौमी को, या को हरकत के, एक अलिफ की हरकत के बराबर खींचेंगे। कौमी को भी नरमी से अदा करेंगे। शाबाश। ये हरफ लीन में से इन्नकुम, इसमें मुशद्दद है तो इसको सख्ती से अदा करेंगे। नून मुशद्दद ज़लम, को अच्छे से गुन्ना करेंगे। गुना, जी गुना करेंगे। ज़लम तुम, ज़ाल और लाम पे हरकत है तो इसको ज़ो, जल्दी से करेंगे। ज़ा और लाम को जल्दी से अदा करेंगे। लम तुम, हरकत को जल्दी से अदा करेंगे। हरकत को जल्दी से अदा करेंगे। ता पेश में तुम को नरमी से अदा करेंगे। अनफुसकुम, यहाँ पे इख्फा तामीम करेंगे। पेश तुम, ठीक है? ये साकिन का कायदा है, ठीक जी है? साकिन का कायदा क्या है? अपने माकबल मुतहरिक हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है, साकिन कमजोर होता है, ठीक है? तो इसको बस ऐसे एक्सप्लेन करना है, ये साकिन का कायदा है।
तो ता की पेश को हम किससे मिलाएंगे? मीम साकिन से मिलाएंगे। ठीक है। ठीक है, आगे। यहाँ पे इक्फा करेंगे, कमजोर गुन्ना करेंगे। ठीक है, और बित्तहाज़िकुम, यहाँ पे बा के साथ अलीफ है तो इसको एक अलीफ के बराबर खींचेंगे। एक और मिनट, रुके। अब यहाँ पर देखिए मीम साकिन के बाद बा आ रहा है, ठीक है, मीम साकिन का कायदा। अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इज्ल। अब यहाँ पे मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो क्या होगा यहाँ पर? इख्फा इसको होगा, ठीक इक्फा है, होगा। कमजोर गुन्ना होगा। और बा की जेर को किससे मिला रही हूँ मैं? बित्ती, से जी, ता से। ये मुशद्दद का कायदा है। मुशद्दद का कायदा है। आगे खाजिकुम, खा को जल्दी अदा करेंगे, हरकत का कायदा है। दा को नरमी से अदा नहीं, करेंगे। देखिए खौ अलिफ जबर खौ, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले जबर आ गया, जी, अलिफ मद्दा, इसको आपने एक अलिफ के बराबर खींचना है। जाल को इसके नीचे हरकत है तो इसको जल्दी से अदा करेंगे। कोमुल, इसको इस पे हरकत है तो इसको भी जल्दी से अदा करेंगे। इजला, इस पे इक्फा करेंगे। इख्फा कहाँ से होगा? जीम किस में से? मुल इजला, अच्छा मुझे बताएं, जीम कौन सा हर्फ है? जीम साकिन, लिन अगर साकिन। आयत के बीच में आ जाए तो। कलकला के हुरूफ कितने होते हैं? कल कला के 5। 5। कौन कौन से? कॉफ, कॉफ, तो, बा, जीम, दाल, ठीक है। अगर हुरूफ कलकला में से कोई भी हर्फ आयत के बीच में आता है तो वहां पर कमजोर कलकला होगा। तो ये जीम आयत के बीच में है, जी, इजला, तो यहाँ पर इजला, हम कमजोर कलकला करेंगे, ठीक है, इख्फा नहीं होगा, कमजोर कलकला होगा। एकदम कल कला होगा यहाँ पे। ठीक है, फा आगे है, फा पे हरकत है तो इसको जल्दी अदा करें। ता पे वतू, इसको हरूफ वाव लीन। मद्दा है, अ, अ, आगे बा पे वाव मद्दा वतू, है, इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, ठीक है, बा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए छोटी मद आपको नजर आ रही है, इसको 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। ठीक है, आगे इला, अलिफ को जल्दी पढ़ेंगे, इस पे हरकत है। लाम पे खड़ी एक मिनट, एक लाम पे अलिफ, खड़ी हरकत है, इसको जल्दी पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे लाम को। ठीक है, बा, बा अलिफ बा है, इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ठीक है, रा, रा इकुम, इसको नरमी से अदा करेंगे। बारीइकुम, बारीइकुम, हमजा जेर ई भी है, हर्फ ली नहीं है। हुर्फ लीन नहीं है ना, ये तो सिर्फ हरकत है। रा, हाँ, रा सिर्फ हरकत है। हाँ, रोजेर री, हमजा जेर ई, ये सिर्फ हरकत है। हरकत को हम जल्दी अदा करेंगे। हुरूफ लीन कितने होते हैं? वाव साकिन और या साकिन, जब इन दोनों से पहले जबर हो तो इनको हम नरमी से अदा करेंगे, ठीक, ठीक है। जी, आगे अब यहाँ पर देखें, कौफ आ गया है, तो कौफ किस में है? कौफ साकिन आयत के बीच में, जी, क्या चलिए। क्या है ये? हुरूफ कलकला, फ़क़्तलू, क़ाफ है, ये हर्फ कलकला है। ठीक है। कैसा और कलकला करूं मैं, ताकतवर या कमजोर? यहाँ पे कमजोर, शाबाश। छोटी मत भी है, अब इसको कितने अलिफ के बराबर खींचना है? इसको 3 अलिफ के बराबर खींचना है। शाबाश। नून आगे साकिन के बाद फा आ रहा है, पा रहा है तो इसको जल्दी में अच्छे पढ़ेंगे। से गुन्ना होगा या कमजोर गुन्ना होगा? यहाँ पे कमजोर गुना। ठीक है, आगे बढ़े। ज़ालिकुम, ज़ा पे खड़ी है तो इसको एक अलिफ के बराबर जाल खींचेंगे। पे, जाल पे खड़ी हरकत है, हाँ, ज़ा, इसको खड़ी हरकत है तो एक अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। लिकुम, इसको लाम को जल्दी पढ़ेंगे। कुम, इसको नरमी से अदा करेंगे। खैरुल्लाकुम, इस पे हर्फ यरमलून है तो। और इंदा, तो क्या यहाँ पे होगा यहाँ पे? तनवीन के बाद जो है लाम आ रहा है, क्या होगा यहाँ पे? गुन्ना होगा, इजहार होगा? गुन्ना होगा। गुन्ना क्यों होगा? मुशद्दद है अगला हर्फ। खैरुल लकुम,
خیر وہ تو ہم ملا رہے ہیں، مشدد کو تو ہم ملا رہے ہیں، مشدد کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ اپنے ما قبل متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر یرملون کا قاعدہ ہے، ادغام کا قاعدہ ہے، تو ملائیں گے تو صحیح، لیکن یہاں پر اظہار ہوگا، ٹھیک ہے؟ لام اور را میں اظہار ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا. ٹھیک. خیر لکم. خیر اللہ. آگے آگے ہے عند بارئکم. عند عند یہاں عین ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا. نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا. اکفا ہوگا. بالف با یہ ایک لفظ کے برابر کھینچے گے، را کو جلدی پڑھیں گے، اور فتابا فا کو جلدی ادا کریں گے، تا الف الف کے برابر کھینچیں گے، با کو جلدی پڑھیں گے. علیکم یہاں پہ اکفا ہوگا. علیکم نرمی سے ادا ہوگا. حرف لین ہے، لام یا زبر لئی. نرمی سے ادا ہوگا. انہو اس پہ مشدد ہے، اس کو مشدد سختی سے ادا ہوگا. انہو اچھے سے غنہ کرنا ہے، نون مشدد پہ آپ نے اچھے سے غنہ کرنا ہے. یہاں پہ گناہ ہوگا، ہوا یہ جلدی سے ادا ہوگا. آگے والے تواب الرحیم یہ مشدد ہے تو یہ سختی سے ادا ہوں گے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ آپ نے اچھا ایکسپلین کیا، اچھی کوشش کی ہے. آپ نے حروف لین کا قاعدہ اور جی نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ، ٹھیک ہے، آپ نے ریوائز کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، باقی ماشاء اللہ آپ نے اچھا پڑھا ہے، اچھی کوشش کی ہے، شاباش. جی منیزہ خلیل جلدی جلدی ہینڈ ریز کیجئے سب. منیزہ جی خلیل آپ آئیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. شاباش ماشاء اللہ اچھا پڑھا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، قواعد بتائیے. واؤ پہ حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. زال جو ہے وہ نرمی سے ادا کیا جائے گا. قاف یہ الف مدہ کا قاعدہ ہے تو اس کو الف کے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. لام کو جلدی پڑھیں گے. حروف مدہ ہے، میم واو پیش منہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. سین پر کھڑی مد ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لام کو جلدی پڑھیں گے. حروف لین ہے قو، اس کو نرمی سے پڑھیں گے. میم کو جلدی سے پڑھیں گے. ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہ حروف لین ہے قو، اس کو نرمی سے پڑھیں گے. میم کو جلدی پڑھیں گے. یہاں انا کو مشدد ہے نون تو اس کو کر کے سختی سے پڑھیں گے. اور ذات کو جلدی پڑھیں گے. ذو کو جلدی پڑھیں گے. اور لام اور میم میں یہ ساکن کا قاعدہ ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے. اور میم بھی ساکن کا قاعدہ ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے. آگے اخفا کا قاعدہ ہے تو اس کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے. نون ظلمتم، میم کے مخرج کو ہم نے صرف ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. ظلمتم میں ظلمتم. انفسکم میں ان جو ہے وہ اخفا کا قاعدہ ہے، کمزور غنہ کریں گے. فا کو جلدی پڑھیں گے، سین کو بھی جلدی پڑھیں گے. اور
काफ मीम कुम में मीम की आवाज के साथ पढ़ेंगे कुम। यहाँ ता जो है वो तजदीद का कायदा है, इसको सख्ती से पढ़ेंगे। बित्ती और खा और अलीफ जो अच्छा, है मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो यहाँ पर कौन सा कायदा है? अनफुसकुम बित यहाँ मीम गुन्ना की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे। इख्फा। ठीक है, मीम साकिन का कायदा क्या है? मीम साकिन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो वहां पर इख्फा होगा, कमजोर गुन्ना होगा। ठीक है, ठीक है। अनफुसकुम बित्तिखाजिकुमुल इज्ल। अलिफ क्लियर है? मद जी। बाकी फिर आगे बताएं। है तजदीद का कायदा, तो मुशद्दद है ये, तो इसको मुशद्दद। मुशद्दद है तो इसको सख्ती से पढ़ेंगे। ठीक है, और खा जो है अलिफ मद्दा का कायदा है, इसको अलिफ एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। जाल को जल्दी अदा करेंगे, काफ को भी जल्दी अदा करेंगे। और ये जज़म का है, साकिन का कायदा है, इसको नरमी से पढ़ेंगे। और आइन और जीम को भी नरमी से पढ़ेंगे। लाम को जल्दी पढ़ेंगे। आइन और जीम को नरमी से पढ़ेंगे। जी, ये नरमी तो सिर्फ हमने हुरूफ लीन में देखी है ना, कलकला कि है। हुरूफ लीन को नरमी से हम अदा करते हैं। अगर हाँ ठीक है, कलकला है तो यहाँ पर कलकला बताइए ना कि कमजोर कलकला होगा। जी, कमजोर कलकले की वजह से जीम को नरमी से पढ़ेंगे। नहीं, नरमी से नहीं होता, कलकला के मायने होता है आवाज का पलट कर आना। बस हम जी, ये कहेंगे कि अगर कलकला का हर्फ आयत के बीच में आ जाए तो कमजोर कलकला होगा। इज, मतलब मेरा वही था कि कमजोर कलकला करेंगे। कमजोर कलकला। ठीक है, नरमी और कमजोर कलकला में फर्क है। नरमी हम सिर्फ हुरूफ लीन में देखते हैं, ठीक है, या फिर हम मखरज देखते हैं जो नरमी वाले हर्फ होते हैं। जी, चलें आगे। लाम को जल्दी पढ़ेंगे, फा को जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ हुरूफ मद्दा का कायदा है, वाव मद्दा का कायदा है, तो इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बा और वाव जो है ये भी हुरूफ मद्दा का कायदा है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। आगे छोटी मद है। फतूबू, हाँ, फतूबू। अब यहाँ पर देखिए, जब छोटी मद आ जाती है तो उसको हम 3 अलिफ के बराबर खींचते हैं। ठीक है, हरफे मद के बाद अगर हमजा है, ठीक है, दूसरे कलमे में मौजूद हमजा है, तो इसको हम 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। ठीक ठीक है, छोटी मद को हम 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। ठीक फिर हम इसको 1 अलिफ के बराबर तो नहीं खींच रहे ना, फतूबू ऐसे तो नहीं पड़े क्योंकि इसके ऊपर छोटी मद है, इसको हम 3 अलिफ के बराबर खींच रहे हैं। जी। ठीक है, आगे। हमजा को जल्दी पढ़ेंगे। लाम पे खड़ी जबर है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अलिफ मद्दा का कायदा है, बा तो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। रॉ को जल्दी पढ़ेंगे, हमजा को जल्दी पढ़ेंगे। काफ मीम पेश कुम, इसे जमा मीम की साकिन आवाज। का कायदा है, इसको हम हरकत से मिलाकर पढ़ेंगे। जी, हरकत से मिला के पढ़ेंगे। कुम बारी कुम। फिर फा, और यहाँ पर कलकला आ रहा है कौफ पर, तो इधर कमजोर कलकला करेंगे। फक, ता को जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ हुरूफ मद्दा है लू, और आगे छोटी मद है, तो इसे 3 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। फक्तुलू। आगे इख्फा का कायदा है, अनफुसकुम। यहाँ इख्फा करेंगे, कमजोर गुन्ना करेंगे। और फा को जल्दी पढ़ेंगे, सीन को जल्दी पढ़ेंगे। और काफ मीम पेश कुम है, तो यहाँ साकिन का कायदा है। अच्छा, जाल पे खड़ी जबर है, तो इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लाम को जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ साकिन का कायदा है, तो इसको मिला के पढ़ेंगे। कुम जालिकुम। यहाँ पर हुरूफे लीन है, नरमी से पढ़ेंगे। खई, और यहाँ हुरूफ यरमलून का कायदा आ रहा है, तो यहाँ पर आवाज वाजे करके पढ़ेंगे। खैरुल्ला। और आगे काफ मीम पेश कुम, यहाँ पर साकिन का कायदा है। खैरुल्ला कुम। आगे यहाँ पर आइन नून आइन, नून की आवाज में इख्फा करेंगे क्योंकि आगे दाल है। ठीक है, और
दाल को जल्दी पढ़ेंगे। आइंदा बा और अलिफ, अलिफ मद्दा का कायदा है, बा को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, रॉ को जल्दी पढ़ेंगे, हमजा को जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ साकिन का कायदा है, काफ मीम पेश कुम, तो बारिकुम, फा को जल्दी पढ़ेंगे। ता को अलिफ मद्दा का कायदा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, बा को जल्दी पढ़ेंगे, फताबा। आइन को जल्दी पढ़ेंगे, हुरूफ लीन है, लई, इसको नरमी से पढ़ेंगे, अलई। और ये साकिन का कायदा है, काफ मीम पेश कुम, अलैकुम, मिला के पढ़ेंगे। ठीक है। इन्नहु, यहाँ पर इजहार का कायदा है, नून इजहार का इन्ना नून मुशद्दद है, करेंगे, मुनून नून मुशद्दद अच्छे से गुना करेंगे। जी। और हा के ऊपर उल्टा पेश है, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इन्नहु, हा को जल्दी पढ़ेंगे। आगे मुशद्दद का कायदा है, ता भी और वाव भी, तो इनको जमा के पढ़ेंगे, हुवा शाबाश। तव्वाबु। और बा के बाद रॉ आ रहा है, ये भी मुशद्दद है, इसको भी जमा के पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हुरूफे मद्दा हैं, इसको खींच के पढ़ेंगे, तव्वाबुर रहीम। ठीक और है। मीम साकिन हो जाएगा। मीम तो साकिन होगा तो छोटी मत 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। जी, ठीक है। तव्वाबुर रहीम। शाबाश, माशाल्लाह, अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, शाबाश। जी, अभी मुनीजा आपने पढ़ा है? जी मिस। ठीक है, फरहाना अंजुम आप आ जाएं, इसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم बारीकुम, إلى بارئكم बारीकुम, بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. शाबाश। चले आयत नंबर 54 में आपने जो कवायद आपको नजर आ रहे हैं वो बताइए। अभी यहाँ पे पहले वाव है, वाव को बोल करके पढ़ा जाएगा। हमजा के नीचे जेर है, मईज कौल में अलिफ जो है वो अलिफ मद्दा बन रहा है, तो इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। मूसा में जो है वाव साकिन से पहले पेश है, तो ये भी वाव मद्दा बन रहा है। सीन के ऊपर खड़ा ज़बर है, तो इसे भी एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाएगा। कौमी ही में वाव साकिन से पहले ज़बर है, तो ये लीन का कायदा बन रहा है। या के ऊपर फिर इसी तरह जो है वो अलिफ खड़ी खड़ी ज़बर है, और आगे जो है लीन का कायदा है। नून के ऊपर तशदीद है, यहाँ पे जो है गुन्ना करके पढ़ा जाएगा, इन्नकुम। फिर उसके शाबाश। बाद जलम तुम जो है यहाँ पे मीम साकिन है, तो यहाँ पे साकिन का कायदा इस्तेमाल होगा। हमजा के ऊपर ज़बर है, तो नून जो है वहाँ पे हरूफ इख्फा है, क्योंकि आगे जो है वो फा आ रहा है, तो यहाँ पे जो है वो गुन्ना किया जाएगा। फिर इसके बाद ता को जरा सख्ती से मीम मुशद्दद साकिन के बाद बा आ रहा है, मीम साकिन के बाद बा आ रहा है, तो यहाँ पे जो है शफवी क्या उसको कहते हैं, ठीक है, इख्फा शफ्त। हाँ इख्फा शफवी इस्तेमाल का कायदा इस्तेमाल होगा। ता को जरा जमा के पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये ता मुशद्दद है।
اور اس کے بعد الف جو ہے وہ الف مدہ بن رہا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا، اور میم کو جو ہے لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، فتوبو واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پہ مد بن رہی ہے، اس کو بھی کھینچ کے پڑھا جائے گا، آگے چھوٹی مد آ رہی ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچا جائے گا، اور اس کے بعد وہی کھڑا زبر ہے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، حمزہ پہ ہلکا سے جھٹکا دیں گے، جھٹکا نہیں دیں گے، جھٹکا کیوں دیں گے؟ حمزہ ساکن نہیں ہے نا؟ ہاں باریکم، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر وہی چھوٹی آگے چھوٹی مد آ رہی ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے، اور نون جو ہے وہ نون کے آگے فا آ رہا ہے تو اسے اخفا قاعدہ استعمال ہو رہا ہے، وہی دال کے اوپر کھڑا زبر ہے تو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، میم ساکن کا قاعدہ استعمال ہو رہا ہے، اس کے بعد یہاں پہ خیر لکم ادغام کا قاعدہ استعمال ہو رہا ہے، حروف یرملون میں سے ٹھیک ہے۔ خیر لکم کا قاعدہ استعمال ہو رہا ہے، پھر اچھا یہاں پہ دال کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، اظہار ہوگا خیر لکم، آگے اس کے بعد جو ہے عند بارکم، اس میں وہی عند بارئکم، عند بارئکم، اور جو ہے اس کے بعد فتابہ الف کے اوپر وہ مد بن جائے گا، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، علیکم، پھر آگے انہو نون مشدد ہے، اس کو جما کے پڑھیں گے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، 1 الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، انہو هو التواب الرحیم، واو کو تا کے ساتھ ملائیں گے، تا اور وا دونوں مشدد ہیں، ان کو جما کر پڑھیں گے، اور با کو جو ہے وہ را کے ساتھ ملا دیں گے، اور را کو بھی جما کے پڑھیں گے، مشدد فل ہونے کی پڑھیں گے، وجہ موٹا پڑھیں گے، سے را کو موٹا پڑھیں گے اور مشدد ہونے کی وجہ سے جما کے بھی پڑھیں گے، اور پھر یہاں پہ جو ہے یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے تو یہاں پہ یا مدہ بن جائے گا، تو اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے، کیونکہ آگے جو ہے وہ آ رہی ہے کیا اس کو کہتے ہیں، یہ جو مطلب کہ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے تو یہاں پر 3 الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، التواب الرحیم، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپلین کیا آپ نے، شاباش۔ جزاک چلیں جی آج ٹاسک کی طرف پڑھتے ہیں۔ آج جو ٹاسک میں ہماری سورت ہے وہ ہے سورت الہمزہ، ٹھیک ہے، سورت الہمزہ نکال لیں سب، میں یہاں پہ بھی دیکھ لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا سورت الہمزہ جو ہے 9 آیت پر مشتمل سورت ہے۔ آج ہم سورت الہمزہ کی 5 آیتیں لیں گے تاکہ جو ہے آپ ایزیلی جو ہے وہ اچھے سے پریکٹس کریں اور جو ہے اچھے سے اپنا ٹاسک کر سکے، ٹھیک ہے۔ باقی کی 4 آیتیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے، تو اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ اچھا یہاں پر دیکھیں لمزہ، میں نے گولتا ہے تو یہاں پر وف کی صورت میں گولتا کیا ہو جاتی ہے، ہاں میں بدل جاتی ہے۔ اب یہاں پہ نون زیر نی ہے، اسے کہتے ہیں نون قطنی، تو اس کا کیا رول ہے، اگر ہم وف کریں گے تو ہم کیسے پڑھیں گے، لمزہ ہی پڑھیں گے، گولتا کو ہاں میں بدل دیں گے، لیکن اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم کیسے پڑھیں گے، لمزتن الذی، ٹھیک ہے، نون کتنی کو پھر ہم ملائیں گے لام سے، نون کی زیر کو ہم لام سے ملائیں گے۔ يحسب أن ماله أخلده،
ہا کا مخرج بہت اچھے سے ادا ہونا چاہیے، نون مشدد اچھے سے آپ نے غنہ کرنا ہے، اور چھوٹی مد کو آپ نے 3 الف کے برابر کھینچنا ہے. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد با ہے اور درمیان میں چھوٹی سی میم ہے، تو اقلاب کا قاعدہ ہے، نون کی آواز کو ہم میم سے بدل دیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. 3 الف کے برابر ہمیں کھینچنا ہے، چھوٹی مد کو کھڑی حرکت کو آپ نے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، ہا کا مخرج آپ نے بہت اچھے سے ادا کرنا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. صدق اللہ العظیم. چلیں جی کلاس کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں قرآن والوں میں شامل فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.